everyone, welcome to Botany Insider. So in this lecture we'll be dealing with the topic of enzymes. इस वीडियो के अंदर हम enzymes के basics के बारे में बात करेंगे and in the subsequent 2 lectures we'll be completing the topic of enzymes. I have tried to make this topic as detailed as possible. Why? Because many times questions have been asked from this particular area in the CSI or UGC NET examination, and also it is one of the most important topic अगर हम previous year questions को analyze करें. So first of all, let us understand that what an enzyme is all about. So an enzyme is a substance that acts as a catalyst in the living organisms, regulating the rate at which the chemical reactions are proceeded without itself being altered in the process. That is, in very simple words हम बोल सकते हैं एक एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक प्रोसेस के होने के रेट को, एक केमिकल रिएक्शन के होने के रेट को इंक्रीज कर देता है विदाउट itself being used or altered in the process. For example, consider this is a chemical reaction being going on. So इस chemical reaction को without the enzyme let's consider 30 minutes लग रहे थे complete होने के लिए. अब for example ये enzyme आया और इस enzyme ने क्या किया, इस enzyme ने इस particular chemical reaction में participate किया. So now what happens is that because this enzyme is catalyzing the process of this particular chemical reaction, what happens is अब ये process सिर्फ 2 minutes में complete हो रहा है. और second thing, यहाँ पर जो enzyme initially use हुआ एंड में भी एंजाइम हमारा ऐसा ही रहेगा, एंजाइम का कोई भी ऑल्टरेशन नहीं आएगा. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बट दे डू नॉट गेट ऑल्टर्ड देमसेल्व्स. उनकी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता. दिस इज़ द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम्स. Enzymes catalyzes all aspects of the cell metabolism. I hope the basic that what a cell actually does is clear to you. It is actually increasing the rate, it is increasing the speed by which the reaction is occurring. That is, initially 30 minutes लग रहे थे without the enzymes, but enzyme के involvement की वजह से सिर्फ 2 minutes के अंदर ये complete process complete हो गया. This is a simple consideration for the same. So अगर हम एक एंजाइम के मैकेनिज्म की बात करें इन द सिंपलेस्ट मैनर, व्हाट हैपन्स इज एक सबस्ट्रेट आया. व्हाट इज़ अ सबस्ट्रेट? कोई भी केमिकल रिएक्शन के जो हमारे स्टार्टिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनिशियली किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर नोन एज द सबस्ट्रेट. सो ये सबस्ट्रेट्स आएंगे, ये हमारे एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, नॉट completely, that is यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी. What are covalent bonds? Covalent bonds are the strongest type of bonds available. हमने bonds के बारे में डिस्कस किया है previous lectures के अंदर. I'll put the links of the same in the description box so that आपको bonds का topic भी clear हो जाए. So substrate would come, it would bind to the enzyme. There occurs the formation of the enzyme substrate complex और ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को हेल्प करेगा अपना केमिकल रिएक्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में, और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके रिलीज आउट हो जाएंगे और एंजाइम एज इट इज़ रह जाएगा. एंजाइम में कोई ऑल्टरेशन नहीं आएगा एंड दिस एंजाइम वुड बी फ्री फॉर द नेक्स्ट साइकिल टू अकर. सो दिस इज़ द वेरी बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. हम मैकेनिज्म को कंप्लीट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. इस पार्ट में we'll be discussing only the basics of enzymes. So a substance that is produced by the living organism which acts as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction. Catalyst is nothing but a
कंपोनेंट जो एक रिएक्शन को इंक्रीज करे, और एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं. एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. एंड व्हाट आर कैटलिस्ट? दे एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शंस. द मॉलिक्यूल्स अपॉन विच द एंजाइम्स may act, they are called as the substrate, and the enzyme converts the substrate into different molecules, they are known as the products. जो अभी हमने डिस्कस किया, that is जो इनिशियल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम सबस्ट्रेट्स बोलेंगे. एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जो एंड में प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट्स. सो दिस वाज अबाउट इट. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कि एक्टिव साइट्स क्या होती हैं. सो एंजाइम के ऊपर जिस एरिया पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा उस एरिया को एक्टिव साइट बोलते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये हमारा एंजाइम है और इसकी ये एक्टिव साइट है. अब हर एंजाइम की एक्टिव साइट अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा और फिर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और फाइनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम रिलीज आउट हो जाएगा. विल डिस्कस अबाउट दिस. So the active site is the region of an enzyme where the substrate molecule bind and undergo a chemical reaction. The active site consists of the amino acid residues that form the temporary bonds with the substrates, that is the binding site, and the residues that catalyze the reaction of that substrate is the catalytic site. जहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा वो बाइंडिंग साइट होती है और यहाँ पर टेम्परेरी बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, परमानेंट बॉन्ड्स नहीं होते क्योंकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ से रिमूव आउट होना है. सो ताकि कम एनर्जी यूज़ हो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसीलिए टेम्परेरी बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं बाइंडिंग साइट पे. और जहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट का कैटालिसिस होगा दैट इज़ द कैटालिटिक साइट. ये एक्टिव साइट के एरिया में ही होते हैं. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्टिव साइट इन पर्टिकुलर. So a large protein enzyme molecule is composed of one or more amino acid chains that is called as a polypeptide chain. अभी हम एंजाइम का कॉम्पोजिशन अच्छे से डील करेंगे. द अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स विच आर असेंशियल टू द एंजाइम स्पेसिफिसिटी. सो अगर एक एंजाइम के जिस एरिया में वो है वहाँ के टेम्परेचर में या पीएच में कोई भी ऑल्टरेशन आता है तो उसकी वजह से प्रोटीन अपनी इंटेग्रिटी लूज कर देगा, दैट इज इट वुड गेट डीनेचर्ड. हर एंजाइम एक प्रोटीन ही होता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. What is a polypeptide and how does a polypeptide gets formed? This is what we have discussed in the Ramachandran plots. Basics के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. आई विल पुट द लिंक्स ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो अगर जिस एरिया में हमारा एंजाइम है उसके टेम्परेचर में या पीएच में कोई भी चेंज आता है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर माइट गेट डीनेचर्ड. एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर डीनेचर होगा तो उसकी एंजाइमेटिक एबिलिटी भी डीनेचर हो जाएगी. और जो डीनेचुरेशन है इट इज़ समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल. दैट इज़ व्हाट डू वी मीन बाय रिवर्सिबल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द एंजाइम और कोई डीनेचुरेशन होने की वजह से ये खराब हो गया. देयर अकर्ड सम ऑल्टरेशन बट दिस डीनेचुरेशन इज समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल. दैट इज़ अगर फ्लक्चुएशन बहुत माइनर लेवल पे है तो ये ऑल्टरेशन कुड बी रिवर्स्ड बैक. बट इफ़ द ऑल्टरेशन इज़ एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब बहुत वाइड रेंज में ऑल्टरेशन है, सो द रिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस डीनेचुरेशन इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस वाज अबाउट इट. सो एज यू कैन सी एंजाइम का फंक्शन क्या होता है. पहले एंजाइम आया, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा सबस्ट्रेट के आने पर. एंजाइम सबस्ट्रेट के बाद एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनेगा और वापस से एंजाइम
फ्री आउट हो जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसको सिंपल तरीके से हम ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं, इनिशियली वी हैव द एंजाइम्स एंड द सबस्ट्रेट इंडिविजुअली प्रेजेंट, उसके बाद हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट फॉर्म होगा और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। एंजाइम इज फ्री फॉर द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक फंक्शन ऑफ द एंजाइम। सो अगर हम एंजाइम के डिस्कस करें, इट कुड ईदर बी अ मोनोपेप्टाइड और अ ओलिगोपेप्टाइड डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे यूनिट्स कितने यूज़ हुए हैं। एंड सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि एंजाइम को अगर हमें नेचर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना हो तो पहला होता है द सिंपल वंस इन विच ओनली द प्रोटीन पार्ट इज प्रेजेंट, और सेकेंड वाला इज़ द कॉन्जुगेटेड वन। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है उसको हॉलो एंजाइम बोलते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डायग्राम। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बाइफर्गेशन। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एंजाइम को ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, द फर्स्ट वन इज़ द सिंपल वन जिसमें सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होगा। द सेकेंड वन इज़ द कॉन्जुगेटेड वन जिसको हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। कॉन्जुगेटेड में भी अगर प्रोटीन का पार्ट है तो उसको एपोएंजाइम बोलेंगे, और अगर नॉन प्रोटीन का पार्ट है उस नॉन प्रोटीन के पार्ट में भी अगर कोफैक्टर है तो वो इनऑर्गेनिक होगा, और अगर कोएंजाइम यूज़ हो रहा है तो वो कोएंजाइम होगा, और वो भी ऑर्गेनिक या फिर विटामिन्स। So let's try to understand about the enzyme structure in a better and a simple manner. So consider initially we have the protein component of the enzyme. मान लीजिए this is the protein component, और इस protein component को हमने apoenzyme का नाम दिया। So initially we have the enzyme, और इस enzyme का हमने सिर्फ अभी apoprotein that is the protein component को अटैच किया है। अब लेट्स कंसिडर कि हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट भी आके अटैच हो गया। नॉन प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दैट इज व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस। सो अब हमारा एपोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप साथ में है, विच इज़ हमारा प्रोटीन कंपोनेंट और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट साथ में कनेक्ट हो गए हैं। दिस complete component, that is the protein part and the non-protein part together is what is known as the holoenzyme, or the other name for the holoenzyme is the conjugated enzyme, that is हमारा प्रोटीन कंपोनेंट और हमारा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट आया और साथ में बाइंड हो गया, इस पूरे ने हॉलो एंजाइम बनाया। प्रोटीन कंपोनेंट को हम सिर्फ एपोएंजाइम बोलेंगे, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। अब हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप कुड ईदर बी द ऑर्गेनिक वन, तो हमने उसको कोएंजाइम बोला, एंड द सेकेंड वन इज़ द इनऑर्गेनिक वन, दैट इज़ अगर हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो आकर अटैच हुआ है वो इनऑर्गेनिक नेचर का है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो है वो कोफैक्टर आकर अटैच हुआ है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। इट माइट लुक वेरी डिफ़िकल्ट जब हमने उसको टैबुलर फॉर्म में पढ़ा, बट आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। लेट्स जस्ट रिवाइज इट वंस। प्रोटीन कंपोनेंट है एंजाइम में और एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है। जो प्रोटीन कंपोनेंट था हमने उसको एपोएंजाइम का नाम दिया, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप का एंजाइम दिया। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप और एपोएंजाइम साथ में होंगे उसको हम हॉलो एंजाइम और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड एंजाइम का नाम देंगे। दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप आके अटैच होगा इट कुड ईदर बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर वो ऑर्गेनिक है हम उसको को एंजाइम बोलेंगे, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट आके अटैच हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज द को एंजाइम। और अगर हमारा जो कंपोनेंट है, जो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो इनऑर्गेनिक है तो हम उसको को फैक्टर का नाम देंगे। दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। So this is what is depicted over here. We have the apoenzyme which is the protein component, and we have the cofactor as the non-protein component. Cofactor है that means ये एक inorganic component है, inorganic prosthetic group है। ये coenzyme आके bind करेगा और हमारा holo enzyme या फिर whole enzyme का creation हो जाएगा, which is ready for a substrate to come and bind. So this is what we have just studied. Bound to some enzyme is an additional chemical component that is called as the cofactor, which
is a direct participant in the catalytic event and thus is required for the enzymatic activity. A cofactor may be either a coenzyme, दैट इज़ अगर वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो हम उसको को एंजाइम बोलेंगे, और अगर वो इनऑर्गेनिक है तो हम उसको को फैक्टर बोलेंगे. को फैक्टर में बी ईदर टाइटली और लूजली बाउंड टू द एंजाइम. अगर वो टाइटली कनेक्टेड है तो को फैक्टर इज रेफर्ड टू एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. So this was about the complete simple structure of the enzyme. Let's understand about only the last topic that is left, which is the nomenclature of the enzyme. That is, अगर हमें किसी enzyme का नाम देना है तो वो कैसे देंगे. किसी भी enzyme, that is an enzyme will interact with only one type of the substrate or a group of substances which is known as the substrate to catalyze a certain type of a chemical reaction. Because of the specificity, enzymes are often named by adding the suffix ase to the substrate's name, as in the case of urease, which catalyzes the breakdown of the urea. That is, जो एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर फॉर द ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट या फिर फॉर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस जिसको वो कैटेलाइज करेंगे. इसीलिए एंजाइम्स को नाम देने के लिए वी जस्ट ऐड एज टू द एरिया जो भी उस सबस्ट्रेट का नाम है. जैसे कि अगर कोई एंजाइम यूरिया पे वर्क कर रहा है तो हमने उसके एंड में एज ऐड कर दिया, इसीलिए जो एंजाइम यूरिया पे वर्क करेगा उसका नाम यूरिएज बन जाएगा. नेक्स्ट इज हमारे पास 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज होती हैं या फिर 6 क्लासेस होती हैं एंजाइम्स की. द फर्स्ट वन इज़ द ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकेंड वन आर द ट्रांसफरेज, थर्ड वन वी हैव द हाइड्रोलेज, फोर्थ आर द लाइज, फिफ्थ वन इज़ द आइसोमरेज एंड सिक्स्थ वन आर द लाइगेजेस. ये 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे हम एंजाइम्स को डिवाइड करते हैं. दैट इज़, अगर ऑक्सीडोरिडक्टेज है मतलब वो एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व हो. ट्रांसफरेज है दैट इज़ जो ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व हो. देन वी हैव हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व हो. नेक्स्ट वी हैव लाइज विच फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड बाय एडिंग और रिमूविंग अ केमिकल ग्रुप. देन वी हैव द आइसोमरेजेस जो ट्रांसफ़र करता है अ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ आइसोमर. द लास्ट वन इज़ द लिगेज जो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में हेल्प करता है. सो दीज आर द 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ द एंजाइम्स. And then we have one more topic, that is the enzyme and their cofactor. I have tried to list down as many as possible. जितने I was able to find, I have listed them down so that if in exam you find any such question you might be able to solve them. So अगर enzyme pyruvate kinase है तो उसका cofactor K+ होगा. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है तो उसका कोफैक्टर Fe2+, ऑक्सीडेज का कोफैक्टर Cu2+ होता है. डिहाइड्रोजन एनहाइड्रेज का कोफैक्टर Zn2+ होता है. देन वी हैव DNA पॉलीमरेज जिसका कोफैक्टर Mg2+ या Mn2+ होता है. मेक श्योर यू रिमेंबर अबाउट दिस. One question have been asked previously from this area. Then we have the hexokinase जिसका कोफैक्टर Mg2+ है और यूरिएज का कोफैक्टर Ni2+ है. So these are about the various enzymes and their cofactors. Make sure you remember about this. And with this we're done with the complete topic of enzymes basics, and in the next lectures we'll be discussing about the enzyme in more depth. So I hope this video was helpful for you, and if you like this video please do like, share it with your friends, and please subscribe to my channel. And also do not forget to get joined on the Telegram channel. We are practicing questions over there almost every day, so do join there and get the practice done for your CSIR UGC NET examination. So thank you so much for watching, and I'll see you soon. Bye.